Good afternoon, viewers. Thank you for joining today's webinar curated exclusively for you amidst the new COVID 19 variant by Team Remarkable Education. As Conficus once said, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. With that motive, we'll start today's session on the topic Career Futuristic. Our speaker for today's live stream is deep rooted in the field of academic, career counseling, management, and entrepreneurship has been their strong forte through and through. Our first speaker for today is Dr. Pawan Dwivedi sir. Dr. Pawan Dwivedi sir has been working for last 22 years in building a person with employment, skill development, entrepreneurship, competitive mindset, and public interest through teaching. He has played an important role in helping thousands of students to make career in industries. Three foreign origin students are also doing PhD under Dr. Dwivedi's guidance. Also, he is one of the India's first young parliamentaries contestants and has been honored and rewarded by Government of India, international organizations, and many institutions of India. Thousands of students have achieved success in various competitive exams like NEET, IITG, UPSC, CSC, GPSC, NDA, CAT, and many more. Team Remarkable welcome you on board, sir. My other guest is Dr. Yes, sir. Sir, your mic is mute actually. प्रणाम। Namaste, sir. My other guest is Dr. Prachi Gaur, a young mother, tarot card reader, a pilot, and an entrepreneur. Ms. Gaur is the country director India and board member of IIU. She has 14 years of experience in field of career and psychological counseling. She is a distinguished speaker at multiple international webinars conducted by various organizations overseas. A very warm welcome to you, sir and ma'am, and thank you for joining us today. So, the first question that we receive from a student is, what exactly career futuristic means to you, sir, and your views on it? Over to you, sir. Thank you so much, Mr. Harshal. फर्स्ट ऑफ ऑल नववर्ष की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। आज जनवरी मंथ के लगभग अंतिम सप्ताह में हम सभी लोग पहुंच चुके हैं और 2022 प्रारंभ हो चुका है। जनवरी महीने का जो नाम है ये ग्रीक गॉड जेनुस के नाम से लिया गया है। जेनुस के दो चेहरे हैं, एक भविष्य और एक इतिहास। तो जब भी हम फ्यूचरिस्टिक करियर की बात करते हैं तो इतिहास में जो भी हमने उपलब्धियां की हैं, वट एवर वी हैव अचीव्ड इन पास्ट, उसके बेस पर हम क्या बेहतरीन दुनिया को भविष्य में ऑफर कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम स्किल्स डेवलप करें ताकि बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतर जीवन, बेहतर लाइफस्टाइल एंड बेहतर मानव का जो विचार शैली है उसका निर्माण कर सकें। यही फ्यूचरिस्टिक करियर है। मेरा ऐसा मानना है कि विविध क्षेत्रों में भारतवर्ष आज के समय में खूब सारा काम कर रहा है। एक समय था कि जब भारत का एक टैलेंटेड पुल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके एंड दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में जाना ही करियर ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पैमाना मान करके बैठा हुआ था। We were living in this illusion, unless you go abroad, you are not making a right career. लेकिन समय में बदलाव आया है और तेजी से बदलाव आया है। आज दुनिया की हम 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। आज हम वेपन्स एक्सपोर्ट के फील्ड में एक बड़े राष्ट्र के तौर पर उभरे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी हम वेपन एक्सपोर्ट में बड़ा करियर बना लेंगे। आज स्पेस रिसर्च में हम दुनिया की 5 शक्तियों में से एक महाशक्ति हैं। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी महाशक्ति है। धीरे धीरे चिप फॉर्मेशन अथवा तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के मेकिंग की बात है वहां पर भी हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जब मैं सारे क्षेत्रों की बात कर रहा हूं तो यहां पर डेफिनेटली मैन पावर की आवश्यकता होगी। दुनिया के जितने भी महान राष्ट्र जिनको हम कंसीडर करते हैं आज की तारीख में, चाहे रसिया हो, चाहे दूसरे यूरोप के नेशंस हो,
चाहे यूएस हो, यूएस में आप पाएंगे कि पूरी सिलिकॉन वैली इट इज लेड बाय इंडियंस। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में मेरा ऐसा बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि एक टैलेंटेड मैन पावर की आवश्यकता भारतवर्ष को रहेगी कल की तारीख में एक बड़े स्थान पर पहुंचने के लिए। 2021 के बाद कोविड-19, जैसा कि अभी हर्षिल जी ने प्रारंभ किया था, कोविड-19 के नाते काफी सारी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं और भारतीयों ने एक नया लेसन सीखा है, एंड दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक तेजी से उभरता हुआ फील्ड हमारे सामने आया है और हेल्थ केयर में दो विंग क्रिएट हुए हैं। एक जिसको हम लोग एमबीबीएस और जो एलोपैथिक मेडिसिन का मॉडल कहते हैं, और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यूएचओ ने भारतवर्ष को दुनिया का अल्टरनेटिव मेडिसिन का केंद्र बिंदु के तौर पर सिलेक्ट किया है। तो जब हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में केंद्र बिंदु बनेंगे तो उस क्षेत्र में करियर भी बनेगा। तो जब हम लोग मेडिसिन के कोर्सेज के लिए कोई यूरोप की तरफ रुख कर रहा था, तो कोई यूएस की तरफ रुख कर रहा था, क्योंकि भारत में नीट पास करके मेडिकल में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो एक तरह से भारतीयों को एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के माध्यम से दुनिया को एक नया हेल्थ केयर के क्षेत्र में विकल्प देने का मौका मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शन है कि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन, चाहे आयुर्वेद है, चाहे होम्योपैथ है, चाहे नेचुरोपैथी है, चाहे फिजियोथेरेपी या दूसरे जो फील्ड है, योग है, मेडिटेशन है, इसको हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आगे ले जाकर के इसमें एक बेहतरीन करियर हम बना सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है जो हमने कोविड-19 के बाद सीखा है और अब उसमें बदलाव बड़े पैमाने पर आएगा, वो मेरा ऐसा मानना है कि वह है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम लोगों ने कहीं ना कहीं होटल एंड थोड़ा बहुत एक उसको नैरो करके रखा हुआ था, लेकिन अब आप पाएंगे कि जिस तरह से हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे पारिवारिक और सामाजिक संरचनाएं बदल रही हैं, ऐसे में यह एक क्षेत्र है एविएशन के फील्ड में। आप पाएंगे पिछले 5 सालों में भारतवर्ष में एयरपोर्ट्स डबल हुए हैं। तो ऐसे में होटल इंडस्ट्री बड़ी तेजी से राइज हुई है। भारतवर्ष में टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के आसार बढ़ रहे हैं और अभी करंट जो सरकारें हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वो चाहती हैं टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए। टूरिज्म यदि डेवलप होता है तो क्या फायदा होता है, और टूरिज्म अगर कोलैप्स होता है तो श्रीलंका की अभी जो दशा हुई है वो टूरिज्म कोलैप्स होने के नाते हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बड़ा तेजी से उभरता हुआ फील्ड है जहां पर हम अपने करियर को सोच सकते हैं और यहाँ पे खूब सारा कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। चौथा फील्ड फ्यूचरिस्टिक करियर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर को मैं कंसीडर करूंगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब तक किसी राष्ट्र का रूरल सेक्टर डेवलप नहीं होता तब तक वो राष्ट्र संपूर्ण डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता और भविष्य में सिविल वॉर की तरफ भी ड्राइव हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार खूब कोशिश कर रही है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन विलेज वन प्रोडक्ट जो जापान से उठाया गया था, वहां से वियतनाम ने उठाया, आज भारतवर्ष लेकर के आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। तो इनके माध्यम से, और आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्किल की आवश्यकता है। बहुत बार विद्यार्थियों को प्रश्न होता है कि सर मैं जोधपुर जिले में ही जीवन निकालना चाहता हूं, तो मैं कौन से फील्ड में पढ़ाई करूं ताकि मैं जोधपुर में ही रह करके अपना करियर शेप अप करूं। तो आप एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाकर के पाएंगे कि जोधपुर में किस तरह के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है। उस स्किल सेट्स के बेस पे अगर आपने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स अथवा मेडिकल का कोर्स अथवा कोई भी XYZ आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर लिया तो आप जोधपुर में ही रह करके एक बेहतरीन डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके आज भारत सरकार और दुनिया की अधिकतर जो बॉडीज हैं वो रूरल डेवलपमेंट पे खूब फोकस कर रही हैं। उसको ध्यान में रख करके अगर करियर सिलेक्शन किया जाए तो ये फ्यूचरिस्टिक करियर हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन इन्वाइट करूंगा। एंड द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज एनवायरनमेंट, क्लाइमेट। ये हमारा एक अगला सबसे बड़ा विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी स्टडी ऐसा कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज के नाते दुनिया में जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है उसके नाते दुनिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो 2028 तक बहुत बड़ी क्षति का सामना करेंगे। इसके नाते किस तरह से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को दुरुस्त रखते हुए, स्वास्थ्य को बढ़िया रखते हुए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हुए विकास करें, ये हमारे सामने एक अगला सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस क्षेत्र में भी खूब सारा करियर है। मेरा ऐसा मानना है कि इन क्षेत्रों को ध्यान में रख करके यदि लोग अपने करियर को शेप अप करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक करियर हो सकता है। और मुझे विश्वास है
कि हर एक भारतीय के लिए इन सारे क्षेत्रों में खूब सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन हर एक क्षेत्रों में काम किया है, हर क्षेत्रों में ग्रंथ लिखे हुए हैं, हर एक क्षेत्रों के लिए शास्त्र अवेलेबल हैं। अगर हम एक बहुत ही ध्यान से इन चीजों को करेंगे तो एक बेहतर करियर की तरफ जा सकेंगे। थैंक यू सर, इतने सारे सेक्टर्स और बहुत सारी चीजें बताने के लिए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस प्राची मैम? ओवर टू यू मैम। Well, very rightly said by Dr. Pawan Dwivedi. Definitely, it has a tremendous exposure. Career future, obviously, we all want to decide our future, and all the parents are under pressure कि हमारे बच्चों का best career future क्या हो सकता है. But I always say to all my students to understand what is their uniqueness, first and foremost thing, to understand what their skill set is all about. जब ये सारी चीजें वो समझ लेते हैं, अपने स्कोप, अपने रिसोर्सेज व्हाट दे हैव, then it is very easy for them to decide what their future is all about and how they can, excel in their career. So majorly, if I would register, there are 3 points. One, a child would need to know about themselves very much, their uniqueness, that what they are unique about. Then third, that what all resources do they have, and fourth, that what is the scope out of those resources, at the end of the day. Then they can plan their career future accordingly. उनका skill set क्या है, उनकी uniqueness क्या है, और फिर उसी सबको brush up करते हुए अपना, obviously हम आज के लिए तो अपना career decide कर नहीं रहे हैं, we are building up ourselves कल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए कि तब हम क्या होंगे, तो फिर हम उस हिसाब से उसको और nurture कर पाएंगे. So I believe पवन सर की बात से मैं बिल्कुल agree करती हूँ. So over to you, Harshit. थैंक यू मैम। जैसा कि पवन सर ने कहा एंड आपने ये बताया कि रिसोर्सेज, एंड पवन सर ने बताया जो जितने सारे सेक्टर्स अवेलेबल है इंडियन स्टडी के अंदर, बट सर क्या आप कुछ टेक्निक्स बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको बेस्ट करियर उनके लिए कौन सा है वो चूज करने में उनको हेल्प करे? ओवर टू यू सर। बहुत ही आसान है, जिसको हमने सबसे कठिन विषय बना के रखा है कि कैसे करियर सिलेक्ट किया जाए। सबसे आसान तरीका है आपके पास। हमारा दुर्भाग्य, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, जैसा कि अभी आदरणीय प्राची मैम ने प्रारंभ किया था कि वीकनेसेस जाने, तो मैं भी वहीं से शुरुआत करूंगा। वैसे तो मैं जनरली बहुत ही पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ शुरू करना चाहूंगा, लेकिन करियर एक ऐसी चीज है जहां पे आपको, जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वही मॉडल अपनाना पड़ेगा कि कौन सा जवाब नहीं हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, तो हम एलिमिनेशन मॉडल में जाते हैं। तो 4 में से ये 2 जवाब तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हम उसको माइनस करते हैं, तो 2 में से कोई एक सिलेक्शन हम लोग करते हैं, उसको हम एलिमिनेशन मॉडल कहते हैं एमसीक्यू में। तो उसी तरह से करियर सिलेक्शन भी है। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, सिंपल सी चीज है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में आज के समय में कई डजन ब्रांचेस हैं। अगर मैं मेरे यूनिवर्सिटी की बात करूं, पारुल यूनिवर्सिटी की, तो मेरे यहाँ खुद ही 21 ब्रांचेज इंजीनियरिंग में है, डिप्लोमा डिग्री दोनों में 21-21, और कंप्यूटर अकेले में अब 14 जितने स्पेशलाइजेशन, 14 स्पेशलाइजेशन। अब एक समय था, प्राची में मेरी बात से एग्री करेंगे, जब हम लोगों ने 12th पास किया था, तब इंजीनियरिंग में मुश्किल से 10-12 जितनी ब्रांचेज होती थी। तो इट्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो उसमें जो है मशीन्स को के बारे में लर्निंग होगा। इलेक्ट्रिकल है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे फील्ड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सब उसमें कंप्राइज्ड होगा। सिविल इंजीनियरिंग है तो उसमें आर्किटेक्चर भी होगा, उसमें एनवायरनमेंट भी होगा, उसमें वाटर भी होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा, उसमें स्ट्रक्चर भी होगा। ये सब सिविल इंजीनियरिंग में आएगा। तो ये बहुत ही मोटे तौर पे हम सबको पता होता था, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। अभी चूंकि ब्रांचेज बढ़े हैं तो हमको थोड़ा सा होमवर्क करना होगा, और हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एलिमिनेशन मॉडल में व्यक्ति को जाना चाहिए। एलिमिनेशन मॉडल में जाने का सबसे अच्छा तरीका है, जब हम लोग छोटे थे तो हम जब डॉक्टर्स के पास जाते थे तो यूं डॉक्टर नाड़ी पकड़ के बता देते थे, अच्छा तबीयत ऐसी होगी। अभी कोई भी डॉक्टर यूं नाड़ी पकड़ के दवाई दे तो आधे लोग दवाई खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम बिलीव करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू डायग्नोसिस करिए कि मुझे कौन सा डिजीज हुआ है। सो हम n नंबर ऑफ डायग्नोसिस मॉडल में जाते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर कंक्लूजन पे पहुंचता है तब हम सेटिस्फाई होते हैं, हाँ मेरा प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ है, अब मैं खुश हूं, अब जो डॉक्टर दवा दे रहा है बराबर है। सो मेरा ऐसा मानना है कि करियर सिलेक्शन भी एक फुल फ्लेज टेक्निकल प्रोसेस है। व्यक्ति को एक सही करियर काउंसलर के साथ बैठना चाहिए। वो जिस भी दिशा में करियर बनाना चाहता है उसके बारे में पहले एम्पल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए।
अगर वो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता है तो मैनेजमेंट में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो अगर क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है तो फाइन आर्ट्स क्या है, डिजाइन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, विजुअल आर्ट्स क्या है, उसके बारे में डिटेल उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए वेब डिजाइनिंग क्या है, फुल स्टैक क्या है, बिग डेटा क्या है, एंड्रॉइड क्या है। एक बार उसको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा कि इसमें से कौन सी चीज मुझे नहीं पसंद आ रही है। देन वो एलिमिनेशन मॉडल में अगर वो आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा। दैट इज वन पैटर्न। पैटर्न नंबर 2, मैंने 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को इंडस्ट्रीज में जॉब दिलाने में भूमिका रही है। और हर्षिल जी, मैं भारतवर्ष के उन गिने चुने लोगों में हूं जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में लंबे समय तक ब्रिज के तौर पे काम करता रहा। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक होती है और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को जब तक आप समझे बिना उस फील्ड में एंटर हो जाएंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन को लेकर के एक बहुत बड़ा मार्केट में बातें चलती हैं। लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जॉब से, अपने जॉब में जो है दुखी रहते हैं। 35 की उम्र में उनका चेहरा सुबह सुबह मंडे को देखे तो ऐसे लगता है कि वो 75 के पहुंच चुके हैं। ऐसे थकान जैसा रहता है क्योंकि आपने वो फील्ड पकड़ लिया जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि किस तरह के जॉब्स आपको मिलेंगे, उसमें क्या रूटीन लाइफ होगी, किस तरह की लाइफ होगी, ये समझना भी आवश्यक है। बहुत सारे विद्यार्थी किसी को देख करके करियर पकड़ लेते हैं कि मेरे एक मामा के काका के भाई के एक बेटा था, उसने जो है XYZ ब्रांच में पढ़ाई किया इसलिए मैं भी वो पढ़ाई करूंगा, उसको इतने का पैकेज मिल गया। भाई उसने ये डिसीजन 6 साल पहले लिया था। आप पास आउट होंगे 3 साल के या 5 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद आप वापस उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे जिस प्लेटफॉर्म पे वो व्यक्ति खड़ा था जिसको देख के आपने करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया था। मतलब यू आर 10 years लेट इन टेकिंग द डिसीजन। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने एट्रीब्यूट्स को, जैसा कि अभी प्राची मैम ने बहुत क्लियरली बोला, कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को लिखें और उसको लिखने के साथ जॉब मार्केट के साथ कंपेयर करें एंड आगे बढ़ें। द थर्ड पॉइंट इज, हर एक करियर के लिए उनकी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। भारतवर्ष में एक मुहिम चल रही है, भगवान जाने किसने शुरू किया है, मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन उनका ऐसा मानना है मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, नॉलेज के पीछे दौड़ो। मैंने हजारों बच्चों का इंटरव्यू करवाया है और जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अध्यापक जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे, जिन्होंने भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया होगा। अधिकतर इंडस्ट्रीज, अधिकतर जब मैं बोल रहा हूं तो एक लार्जर पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, एक लार्जर पॉपुलेशन जो इंडस्ट्रीज हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रायोरिटी देती है। अधिकतर इंडस्ट्रीज 10th 12th के परसेंटेज भी देखती है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज देखती है। हर 3 में कई इंडस्ट्री डिस्टिंक्शन मांगती है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऑल 3 में 60% मांगती है। मेरा ऐसा मानना है कि एलिजिबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच आई लाइक टू रेज वेरी स्ट्रांगली, दैट इज 6th 7th 8th 9th 10th, ये जो 4 स्टैंडर्ड हैं, 4 से 5 जो है, जो स्टैंड ग्रेड जो हम पढ़ाई करते हैं, एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारे करियर प्लानिंग में। सो आपने 6th 7th 8th 9th 10th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े, चाहे वो आपने बॉटनी पढ़ी, जूलॉजी पढ़ी, अरिथमेटिक पढ़ा, एल्जेब्रा पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ी, आपने बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स पढ़े, म्यूजिक, आर्ट्स एंड बाकी बहुत सारे कोर्सेस आपने करे, आप जो है हिंदी संस्कृत पढ़ा, आपने रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ी, आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। उनमें से कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट का आप एक क्लस्टर बनाएं और उस क्लस्टर को इकट्ठा करके आप देखिए कि कौन से फील्ड में आप जाएंगे तो ये तीनों सब्जेक्ट्स वहां पे आएंगे ही आएंगे। बस आप उस फील्ड में आगे बढ़ जाएं, आपके लिए बहुत आसान। करियर सिलेक्शन इतना मुश्किल काम नहीं है। कंडीशन अप्लाई कि आप सही व्यक्ति को कांटेक्ट करें। और मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि बिना मेंटर के आगे बढ़ना मुश्किल है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम हर फील्ड में मेंटर तो ढूंढते हैं, पर करियर प्लानिंग में हम करियर काउंसलर्स के पास, ऐसे जो प्रोफेशनल डॉक्टर प्राची मैम जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करने में हम हेजिटेंट हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू अप्रोच अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, मीट एंड गो फॉर द एंटायर प्रोसेस। आई एम वेरी मच श्योर दैट इफ यू गो थ्रू द राइट एंड साइंटिफिक प्रोसेस, यू विल रीच एंड लैंड एट राइट प्लेस। Right, sir. Sir, then you must be aware of a technique called SQ3R, that is survey, question, read, recite and review. तो सर उसके बारे में कुछ अगर आप बता पाए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो अभी तो मोबाइल स्टडी जब से आया है तब से समस्याएं बढ़ी हैं और फायदे भी बहुत सारे हुए हैं। टेलीविजन में
बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आकर के हमको गाइड भी करते हैं कि आप इस मॉडल से पढ़ाई करें, उस मॉडल से पढ़ाई करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कन्वेंशनल जो पैटर्न्स हमारे पढ़ाई के हैं वो उतने ही सफलतम इतिहास में भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं। आपके माताजी पिताजी, मेरे माताजी पिताजी, हमारे समय में भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही रहेगा। दैट इज वन मॉडल इज SQ3R, एस फॉर सर्वे। मान लीजिए कि मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूं और इस समय मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं अथवा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं अथवा 12th बोर्ड की मैं तैयारी कर रहा हूं। जनवरी चल रहा है, यही एक मंथ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 ऐसा महीना है जो 2020 के लास्ट के 3 ओवर जैसा है। लास्ट के 3 ओवर जिसने धमाकेदार खेल लिया, मतलब समझिए खेलने की, जीतने की संभावना बढ़ गई। और जो लास्ट के 3 ओवर में डिबेकल कर गया, मतलब बहुत उसके लिए समस्या हो जाती है कंपटीशन में बने रहना। ये 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए व्यक्ति को रोज सुबह उठ करके पहला सर्वे करना चाहिए कि आज के दिन का मेरा शेड्यूल क्या है और आज के दिन में मैं किस तरह से पूरे दिन को प्लान करने जा रहा हूं, आज के दिन को मैं किस तरह से पूरा शेड्यूल करने जा रहा हूं। दैट इज वन। द सेकंड वन, एक सेकंड सर्वे ये होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ने जा रहा हूं उस सब्जेक्ट का मेरा अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उस सब्जेक्ट का रिलेवेंस क्या है और सब्जेक्ट को मैं किस तरह से लेकर के जा रहा हूं, पिछले हफ्ते मैंने कितना उसको फोकस करा हुआ है। सर्वे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सुबह बैठ के कम से कम 5 मिनट या 3 मिनट बैठ करके व्यक्ति को एक सर्वे करना चाहिए, आज का मेरा क्या प्लान है। सेकेंड, जो भी चीज पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस का लिस्ट मेरे पास होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने फिजिक्स का चैप्टर कोई उठाया और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पिछले 5-10 सालों में पूछे गए हैं, मेरे टीचर्स ने, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे ट्यूशन क्लासेस हो, वहां उस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पिछले यूनिट टेस्ट में अथवा तो क्लासरूम टेस्ट में अथवा क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पूछे हैं, उन क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन बिल्ड होता है। SQ3R, वेरी फर्स्ट इज रीड। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो रीडिंग का टाइम टारगेट फिक्स होना चाहिए। बहुत बार हम अपने लिए टारगेट सेट नहीं करते, इसलिए फोकस डेवलप नहीं होता। हम लोग जब कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कराते हैं तो हमेशा टारगेट फोकस्ड होता है। इसीलिए एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का। टाइम हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पढ़ाई के फील्ड में। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब रीडिंग करने बैठते हैं तो एक टारगेट सेट करिए कि 30 मिनट में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खत्म करना है। रीड, राइट, लिखिए। लिखने की आदत छूट चुकी है। यह एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसने लिखना कम कर दिया है। जो लिखेगा वही एग्जाम में लिख पाएगा। फिर से सुनिएगा, जो लिखेगा वही एग्जाम में लिख पाएगा। लिखने की आदत डालिए, जितना हो सके उतना लिखिए। आप पाएंगे, आप मेरे साथ मैं भी दिखा सकता हूं, मेरे टेबल पे कम से कम 25 पेन पड़ी हुई है। आपको अगर मैं कैमरा घुमा सकता तो आप देखेंगे कम से कम 6 डायरियां रखी हुई है। जितनी चीजें दिन में मैं करता हूं, बातें करता हूं, सब लिखता हूं। लिखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को खूब सारा लिखना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स जो मुझे सुन रहे हैं मेरी बात से सहमत करेंगे कि हम लोग जब 12th बोर्ड वगैरह में हुआ करते थे तो 3 नोटबुक बनाते थे। एक क्लासरूम में बनाते थे, एक हम फेयर करते थे और एग्जाम को ध्यान में रख करके हम तीसरी बनाते थे। कई ऐसे होते थे जो 4-4, 5-5 भी बनाते थे। So writing is an important factor as far the study is concerned and preparing for any competitive examination is concerned. And the last point, review, revision. जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में कहा था, that is Greek god Janus जिनके नाम पे जनवरी महीना है, and that is जितना ध्यान आपको नई चीजों पे होना चाहिए उतना ही ध्यान जो पढ़ लिया उसके रिवीजन पर भी होना चाहिए। ऐसा कई लोगों का मानना है कि जो चीज आपने पढ़ी है 24 आवर्स के अंदर उसका रिवीजन होना चाहिए। 7 दिन के अंदर उसका जो है फर्स्ट राउंड रिवीजन होना चाहिए। तो पहला रिवीजन आपने 24 घंटे में किया, दूसरा रिवीजन आपने 7 दिन के अंदर किया और तीसरा रिवीजन इफ पॉसिबल 14 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, पीछे भूलता चला जाएगा और जब एग्जाम आता है, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगता है, एक हफ्ते पहले ऐसा लगता है कि मैं तो सब भूलने लगा हूं। सो मेरा ऐसा मानना है कि रिवीजन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हर एक चीज, चाहे वो आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात करें या जिनकी मेरिट हमारे एडमिशन में काउंट होता है, हमारे कंपटीशन में काउंट होता है, उन सब्जेक्ट्स की सब पे बैलेंस होना चाहिए और इसी को SQ3R टेक्निक कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक विद्यार्थी को पढ़ाई से पहले इस पूरे स्टेप को तैयार करना चाहिए और तैयार करने के बाद यदि पढ़ते हैं तो कम मेहनत में बेहतर स्कोर करने की संभावना प्रबल हो जाती है। Yes, I'm there. Thank you, sir, for such wise words.
सर, मगर क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि जैसे आज टेक्नोलॉजी का टाइम है एंड करियर फ्यूचरिस्टिक की अपन बात कर रहे हैं, तो सर जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी थी या फिर जो चाणक्य की नीतियां थी अबाउट द स्टडी मॉडल और जो ट्रेडिशनल वे था वो ज़्यादा सही था? उस पर आपके व्यूज़ क्या हैं? ना कोई चीज खराब होती है ना कोई सही होती है, इसको हम लोग बोलते हैं समय के हिसाब से। राइट, सो वक्त बदलता है तो समय के साथ सब चीजें बदलती हैं। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, उसने ठुकरा दिया, वक्त की बात है। समय आपका बलवान होता है। मैं चाणक्य की आपने बात की है तो मैं एक चाणक्य का एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करके और अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के एक छोटी सी सेना तैयार की और उस समय के महानतम और सबसे मजबूत जो एम्पायर था, दैट इज नंदा वंश, महानंद जो है जिसके राजा थे, तो उनके ऊपर अटैक करने का प्लान कर लिया और हमला कर भी दिया। सेना छोटी थी, महानंद की सेना बड़ी थी। कुछ ही घंटों के अंदर पूरी सेना मारी गई और चाणक्य और चंद्रगुप्त को भागना पड़ा। दोनों भागते हुए जाकर के एक झुपड़ी के पास छिप गए और झुपड़ी के अंदर एक लेडी अपने बच्चे को खिचड़ी परोस करके उसने दिया था। बच्चे ने खिचड़ी के बीच में उंगली डाल दिया। बीच में जब उंगली डाली तो उंगली जल गई। फिर उस माँ ने अपने बच्चे को बोला, तुम भी बिल्कुल चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरफ बेवकूफ हो। तुमको समझ में नहीं आता कि खिचड़ी बीच में गर्म होगी, साइड में ठंडी होगी। तो साइड से धीरे धीरे तुम खाना शुरू करोगे तो तुमको स्वयं को पता नहीं चलेगा कि कब खिचड़ी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा ना उंगली जलेगा ना जीभ जलेगी। ऐसे ही पढ़ाई भी होती है। कई बार हम जब एग्जाम में पेपर उठाते हैं तो हम सबसे टफ क्वेश्चन से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो दिन होता है, सभी लोगों का अपना फेवरेट टाइम होता है। जैसे मेरा फेवरेट टाइम पढ़ाई करने का सुबह में 3 से 6, 3 से 7 का है। ये मेरा फेवरेट टाइम है। उस समय आप मुझे दुनिया के सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट दीजिए तो भी मैं उसको एंजॉय करूंगा पढ़ना, क्योंकि दैट इज माय फेवरेट टाइम टू स्टडी। बहुत सारे लोगों का ये समय सुबह में होता है, कई लोगों का दोपहर में होता है, कईयों का शाम का होता है, कईयों को मध्य रात्रि में शुरू होता है। तो आपका जो फेवरेट टाइम है उस समय आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाएं। और जिस समय आपको लगता है कि ये मेरा समय बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग नहीं रहता, उसमें आप आसान सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी पढ़ाई में बहुत आवश्यक है। चाहे आप करियर प्लान कर रहे हो, चाहे आप सब्जेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखने का प्लान कर रहे हो। मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि हर एक व्यक्ति को एक स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई को करना चाहिए। और चाणक्य नीति यहाँ पर इतना ही एप्लीकेबल मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत ही आहिस्ता मन से, शांत मन से आप प्लान करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप जल्दीबाजी में करके प्लान करेंगे तो मैं बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, जल्दीबाजी के चक्कर में पेपर में कम स्कोर करके आ जाते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में नर्वस हो जाते हैं, एग्जाम के पहले उनकी पूरी प्रिपरेशन डाइल्यूट हो जाती है। तो ये जो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है। और मैं पारुल यूनिवर्सिटी में हमारे जो लगभग 40,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको इसी चीज पर मैं हमेशा फोकस करता रहता हूं। और हमेशा जब मेरी बात होती है तो इसी मुद्दे पे मैं उनको एम्फेसिस करता हूं कि किस तरह से अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाया जाए। प्राची मैम मेरी बात से एग्री करेंगी कि अभी जो जनरेशन है उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पेशेंस लेवल। जो बच्चे पेशेंस लेवल इंप्रूव कर ले रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो पेशेंस लेवल नहीं इंप्रूव कर पा रहे हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेशेंस के ऊपर खूब काम करना चाहिए, और इसमें डाइट एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप किस तरह से भोजन और किस तरह से अपने दिनचर्या आप रखते हैं, क्या भोजन में कर रहे हैं। आप शाम को पाव भाजी खूब खा लेंगे तो आप रात को पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको भोजन में सिलेक्शन करना पड़ेगा, जहां तक हो सके फास्ट फूड को जितना फास्ट आप छोड़ सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। राइट, पेरेंट्स को भी इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट का 3 महीना बचा है, चाहे बच्चा 11th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, ये 3 महीने जितना हो सके उतना। और अभी तो कोविड ने भी मौका भी दिया है, तो दस्तूर भी है और मौका भी है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं घर का भोजन, सिंपल हल्का भोजन करके आप प्रिपरेशन करें। जितना हल्का खाएंगे, जितना आप अच्छा डाइट करेंगे, जितना फ्रूट जूस लेंगे, जितना आप गर्म चीजों का सेवन करेंगे, उतना पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी जो समय है, इस समय को ध्यान में रख करके बहुत ही अनुकूल समय है सभी लोगों के लिए पढ़ाई करने के लिए। सो आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें, और पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को खूब शुभकामना देता हूं कि पूरी ताकत के साथ आप पढ़ाई करें। What do you have to say about this, Prachi ma'am?
And absolutely rightly said by Dr. Dwivedi. Definitely, and I agree with his points. Because हमारा ना concentration students का basically, and it's not their fault because nowadays हम सब virtual education और इतने सारे different modes, तो बहुत सारे distractions आ गए हैं. जब हम पढ़ते थे तो शायद एक बहुत scheduled life थी, parents, teachers सबका एक time schedule था और respect भी उतनी बनी हुई थी. बट आज बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, पेरेंट्स फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में हैं आगे, तो सबको पता है क्या करना है. बट पहले गुरु गुरु वाला वो कल्चर एकदम डिफरेंट हुआ करता था, आज के समय वो डिफरेंट है. तो लुकिंग एट द करंट पिक्चर आई वुड से कि स्ट्रक्चराइजेशन और इंडिपेंडेंस, हमें सब चीजें पता है बट हर चीज का राइट यूज एट राइट टाइम. हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है बट राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, right? And overuse of everything is also not that good. So सब चीजों की हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड तो हमने सब करवा दिया है, बट अब उन सब चीजों को यूज किस तरीके से करना है, किस तरीके से उनको लेके आगे चलना है, बिकॉज अति हर चीज की खराब होती है. तो अति पे ना जा करके और हर चीज का राइट तरीके से यूज करते हुए बच्चे उन चीजों को इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा है. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो बच्चे का माइंडसेट एक जगह से कहीं ना और ले जाते हैं, और शायद जिस पे उनका फोकस होना चाहिए वो छूट के कहीं और चला जाता है. तो ये एक तरीके की अपब्रिंगिंग मैं कहूंगी कि जो हर पेरेंट्स के साथ में घर में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट उनके लिए, जहां पर वो अपने बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सके कि उनका मेंटल फोकस ही वैसा रहे फ्रॉम डे वन. जब घर में माहौल ऐसा होता है तो वो हमेशा से फिर ऐसे ही उसमें ढल जाता है. तो फोकस्ड रखना और रहना दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं. शायद वो आगे जाकर के प्रॉब्लम उन सब चीजों की नहीं आती है. तो हम फोकस्ड रहते हैं, हम कोई भी चीज हमें कितनी ही मिले लेकिन हमें पता है कि हमें किस चीज का कितना इस्तेमाल करना है और सारी ही चीजें. तो डेफिनेटली करियर हेयर इज इम्पोर्टेंट बट ओवरऑल अपब्रिंगिंग, क्योंकि करियर में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट चूजिंग दैट करियर राइट वो जरूरी है डेफिनेटली, क्योंकि हम अपने करियर से, भविष्य से ऑलमोस्ट वी मैरी दैट फील्ड, राइट? क्योंकि हमें थ्रू आउट अपनी लाइफ उसके साथ में रहना है और एट द सेम टाइम हमें हैप्पी भी रहना है. नाउ टू बी हैप्पी वी शुड बी पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड, एंड हाउ वी विल बी पैशनेट if we will enjoy that. And how will we enjoy? Once we know that what are we going to enjoy and what do we enjoy, क्या हम enjoy करते हैं, और वो समझने के लिए हमारे मन में वो confusion वाली state नहीं होनी चाहिए. और कंफ्यूजन वाली स्टेट कब नहीं होगी? जब हम फोकस्ड होंगे, हमें पता होगा कि हम क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं. सो आई बिलीव ये डे वन से पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, तब करके बच्चे उस चीज को आगे अपनी लाइफ में जो है फॉलो कर पाएंगे और अपने बच्चों को वो भविष्य दे पाएंगे. ओवर टू यू हर्षित. वन मोर पॉइंट वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर. जैसा कि मैम ने बताया फोकस्ड, सो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दैट इज द फर्स्ट करियर काउंसलिंग एवर हैपेंड इन ऑन द प्लैनेट अर्थ एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. व्यवसात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम. अर्जुन, if you want to be successful have one goal and if you want to be failure have multiple. तो अगर सफल होना है तो एक लक्ष्य रखो. तो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें. उस समय फेसबुक, इंस्टा और जितने भी आपके दूसरे डाइवर्जेंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको आप टर्न ऑफ करके रखें. सो वन एजेंडा के तहत अगर करेंगे तो फोकस डेफिनेटली डेवलप होगा. और भगवान श्री कृष्ण बहुत वर्षों पहले कह के गए हैं. मेरा विश्वास है कि फोकस डेवलप करने के लिए मंत्र काफी उपयोगी होगा. Right, sir. Right, ma'am. As sir stated, concentration is very important, and Prachi ma'am also stated that focus is also very important. So I guess concentration and focus are the key roles to be the best make out of the career. But sir and ma'am, being a career counselor and being a teacher, do you think percentage or role of marks plays a vital role in career opting also? Over to you, sir. मैं ऑलरेडी ये चीज कवर कर चुका हूं एक बार. परसेंटेज और मार्क्स का रोल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं. मैं एक यूनिवर्सिटी रन करता हूं. मेरी यूनिवर्सिटी में 40,000 विद्यार्थी हैं, 2,500 से ज्यादा अध्यापक हैं. मेरे अपने यूनिवर्सिटी से पास आउट विद्यार्थी को भी मैं मेरे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना सकता अगर वो 60% स्कोर नहीं करता है.
मतलब जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पास आउट हुआ मेरे संतान की तरह है, मेरे अपने खुद के बच्चे की तरह है, लेकिन उसको भी मैं जॉब नहीं दे सकता अगर वो परसेंटेज क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स है हर्षल, जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे पास एक विद्यार्थी लार्सन एंड टुब्रो में उसको मैंने सिलेक्ट करवाया था, वो थ्रू आउट ही वाज 90 परसेंटाइल एंड अब 90 परसेंटेज एंड अबव इन इंजीनियरिंग इन ऑल 8 सेमेस्टर्स। लेकिन चूंकि एक सेमेस्टर में उसने ड्रॉप लिया था, तो उस एक सेमेस्टर के ड्रॉप के नाते वो 6 सब्जेक्ट उसका फेल बता रहा था, तो उसको मैं ज्वाइनिंग नहीं करवा पाया। Infosys and TCS like industries, they ask for 60% throughout. Reliance Jio and Adani like industries, they ask for 60% throughout. Similarly, जो MNCs हैं, जो global level MNCs हैं, huge number of industries, they ask for 75% throughout. मेरा ऐसा मानना है कि परसेंटेज रोल प्ले करता है। बहुत बार हमको लेट पता चलता है और तब वापस जा करके हम इंप्रूव नहीं कर सकते। परसेंटेज और मार्क्स का मतलब ये नहीं होता हम उसको टेंशन लेके चले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब मुझे जो टास्क दिया गया है वो टास्क मुझे इफेक्टिवली करना चाहिए। अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाता हूं और 98% वो काम करे, 2% अगर वो काम करे तो हम डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो जब मुझे टास्क दिया गया है कि 6 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई करनी है और 6 सब्जेक्ट की आपको एग्जाम देनी है, तो ये मुझे प्रोजेक्ट दिया गया, टास्क दिया गया और मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए जैसा बाकी लोग करते हैं। और इस पूरे परफॉर्मेंस की प्रोसेस में आप चाहें तो 7 चीजें याद रख सकते हैं। उत्साहं निश्चाद धैर्यवाद तत तत कर्म प्रवर्तते संग त्याग सतव्रत शब्दिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। पहला, उत्साह, एनर्जी लेवल। एज आई मेंशन प्रीवियसली कि आप एनर्जी लेवल अपना हाई रखें और उसके लिए आपका एक फिक्स शेड्यूल कर दीजिए। 5 बजे उठना मतलब 5 बजे उठना है, 9 पौने 5 होगा, न 5:15 होगा। 5 बजे से लेकर के आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे सो जाइए। उत्साह, अगर आपका शेड्यूल सही है, भोजन सही है, तो एनर्जी लेवल आपका हमेशा हाई रहेगा। उत्साह निश्चाद, फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतना काम करना ही करना है आज के दिन में, और आप वो करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आती, आपको अच्छा स्कोर आएगा। उत्साह निश्चाद धैर्यवाद, पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी करके कोई भी चीज नहीं करनी है, बिल्कुल धैर्य के साथ आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका काम होगा। उत्साह निश्चाद धैर्यवाद तत तत कर्म प्रवर्तते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तत तत कर्म प्रवर्तते संग त्याग, आपको पहली समस्या आएगी संगत की। और प्राची मैम मेरी बात से एग्री करेंगी, अधिकतर बच्चे 11th 12th में आकर उनका रिजल्ट बिगड़ता है संगत के नाते, क्योंकि उस समय बहुत सारा हमारा बायोलॉजिकल चेंज हो रहा होता है, हमारी केमिकल चेंजेस बहुत सारे शरीर में हो रहे होते हैं, केमिकल लोचा हो रहा होता है। ऐसे चक्कर में हमारा जो संगत है वो सही होना चाहिए। इसीलिए क्लब होते हैं, एलिट क्लब्स होते हैं हर एक बड़े शहरों में, चाहे आप देश के कहीं पे भी जाएं, जहां पे सिर्फ टॉप लेवल इंडस्ट्रियलिस्ट साथ बैठते हैं, तो वो अपने से बेहतर लोगों के साथ हर कोई आदमी बैठना चाहता है। तो आप उन लोगों से मित्रता करिए जो सब्जेक्ट में आपसे अच्छे हो। आपका फिजिक्स अच्छा है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, उससे आप मित्रता करिए। आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, जिसका अकाउंट अच्छा, आप उससे मित्रता करिए। आपकी हिंदी अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आप उससे मित्रता करिए। आप संग त्याग सतव्रत, अच्छे लोगों से आप मित्रता करिए। रामायण में कैकेयी सबसे प्रिय है चारों भाइयों की, लेकिन एक गलत संगत पूरा रामायण की संरचना करवाता है। दुर्योधन की मित्रता अगर शकुनी से ना होती तो शायद महाभारत ना होता। पूरा रशियन एम्पायर, ज़ायर्स का एम्पायर, 350 साल पुराना एम्पायर खत्म हो गया, क्योंकि जरीना की मित्रता एक रसपुतिन के साथ थी और रसपुतिन ने पूरा जार एम्पायर खत्म कर दिया। एक गलत मित्रता आप फ्रेंच रेवोल्यूशन करवा देता है। मेरा ऐसा मानना है कि संग त्याग सतव्रत, सही लोगों की संगत होगी तो अच्छा स्कोर आएगा, और अच्छा स्कोर ही जीवन में आगे बढ़ने का एक सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो मार्क्स नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को कितना सिंसियरली ले रहे हैं, आप अपने दिन के शेड्यूल को कितना प्रॉपरली डिजाइन करके आप काम कर रहे हैं, रोज के 6 घंटे 8 घंटे आप मेहनत कर रहे हैं, उसका वो सर्टिफिकेट है। तो जब नौकरी के लिए आप मेरे पास आते हैं तो मार्कशीट ये बताता है कि व्यक्ति रोज का कितना घंटे काम करता है, कितना सिंसियर है, कितना जेन्युइन है, और इसको अगर हमने कोई प्रोजेक्ट या टास्क दिया तो कितना ईमानदारी से करेगा, उसका वो एक तरह से वो प्रूफ है। बाकी 10 मिनट के इंटरव्यू में मुझे कैसे पता चलेगा कि हर्षिल जी कैसे व्यक्ति हैं, उनके क्या स्किल सेट्स हैं? तो मेरे पास वो प्रूफ है, वो जो कागज वो प्रूफ है। उस कागज के बेस पे मैं डिसीजन लेता हूं कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं कितने हजार की नौकरी दूं, 20,000 की, 40,000 की, 2 लाख की, 25 लाख की, या कितने, वहीं से डिसाइड होता है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को अपना बेस्ट परफॉर्म एग्जाम में करना चाहिए। आपका जो बेस्ट टैलेंट है उसको मार्क्स के माध्यम से दुनिया के सामने रखना चाहिए कि यस, मेरा ये टैलेंट है, मेरी ये सिंसियरिटी है, मेरा ये हार्ड वर्क है, मेरा एक पर्सपिरेशन है, मेरा एक डेडिकेशन है, मेरा एक कमिटमेंट है। दैट इज द साइन ऑफ मार्कशीट। What do you have to say about this, ma'am? Well, definitely, I would say key marks are not very important. बट येस 100% इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सब अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं एंड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। आई ऑलवेज से टू ऑल माई मेंटीज कि मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बट इतने भी नहीं है कि आप सिर्फ या तो मार्क्स के पीछे भागें, लर्निंग भी कि हम सिर्फ रट्टाफिकेशन करते रहें और सिर्फ रट के नंबर्स, मार्क्स, सोल्यूशन सारे एग्जाम बोर्ड में लिख करके आ जाए नंबर्स। और इतने भी इम्पोर्टेंट है कि हमें कहीं एडमिशन लेना है तो एट द एंड ऑफ द डे वन थिंग विच इज ऑलवेज बीन आस्क्ड टू ऑल आवर स्टूडेंट्स इज हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर 10th और योर 12th। अगर जॉब में जाना है, आगे फ्यूचर आपको कोई कंपटीशन के लिए जाना है या फिर फ्यूचर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल एडमिशन लेना है, फॉर एवरीवेयर दे लुक फॉर, इनफैक्ट हम लोग अभी इंटरनेशनल्स के लिए बात कर रहे थे, तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल है। दिस चाइल्ड इज बीन आस्क्ड कि आपका अगर 12th में अबव 85 इंग्लिश में स्कोर है तो फिर आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है। सो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर इट इज बीन आस्क्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आपका स्कोर के बेसिस पे यू हैव योर एडमिशंस। इन फैक्ट लुकिंग एट द कोविड सिचुएशन देयर वर मेनी कॉम्पिटिशंस फॉर द एंट्रेंस वर removed, but then what they were looking for their 12th grades। 12th के ग्रेड्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजीली मिल जाएगा ऑन जस्ट ऑन अ वर्चुअल इंटरव्यू। डेफिनेटली एज सर सेड कि वर्चुअल इंटरव्यू में इतना पता तो नहीं चलेगा, बट आपके ग्रेड्स ये बता देंगे कि हाउ ऑक्यूपाइड, हाउ पंक्चुअल, हाउ डेडिकेटेड यू हैव बीन सो फार इन योर एजुकेशन, यू नो, एंड आप कितना आपका अटेंशन था आपकी पढ़ाई और इन सब चीजों के ऊपर। सो दिस इज वन वे, बट डेफिनेटली एवरी इंडिविजुअल थिंग इज रिक्वायर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ पढ़ाई या मार्क्स के पीछे भागे, एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग, मेनी थिंग्स, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, टू ग्रास्प, टू फॉलो, टू रीच समवेयर। ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपका पर्सनैलिटी, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर academics, everything is important to be a successful person. So अगर आप अपने career future की बात करें तो each and every individual thing is important at the same time, I believe. Over to you, Harshit. राइट मैम, जैसा कि सर आपने लास्ट अपने बताया अभी कि संगति का बहुत बड़ा रोल होता है, महत्व होता है करियर के ऑप्शन लास्ट में, फ्यूचर में। तो सर जैसा मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, सो आप ये बता पाएंगे कि हॉस्टल लाइफ जो होती है क्या वो बहुत अच्छी होती है हमारे फ्यूचर के लिए, और वो बहुत गलत भी हो सकती है फ्यूचर के लिए? तो आप क्या बताना चाहेंगे हॉस्टल लाइफ के ऊपर? ये प्रश्न जो है मेरे हृदय के बहुत नजदीक का प्रश्न है, क्योंकि लगभग मैं 12 से 14 साल हॉस्टल में रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो हॉस्टल में है। इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत ही आपको फ्रीडम मिल जाता है और कोई बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट और फन का मौका मिल जाता है, लेकिन एक जो डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हॉस्टल में ये मौका मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। जब हम घर पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, हम इसी तरह के बिस्तर पे सोएंगे, इसी तरह का भोजन होगा, यही भोजन में होगा, इतना ही नमक, इतना ही मिर्चा होगा, वो बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। लेकिन जब आप हॉस्टल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वही सब्जी आपका वेलकम करती है जो आपको बिल्कुल फूटी नजरों पसंद नहीं होती। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार 6 दिन, कई बार मुझे याद है कि मैं जिस हॉस्टल में रहता था कॉलेज के समय में, हर्षिल जी शुरुआत के 6 महीने लगातार उन्होंने हमको लौकी की सब्जी खिलाई थी। और जब संडे को फीस्ट होता था तो लौकी का ही हमको जो हलवा भी मिलता था, क्योंकि हमारे हॉस्टल के पीछे लौकी की खेती होती थी। सो एक तरह से कहीं ना कहीं आपका एक फूड एक्स्टम्ड व्यक्ति हो जाते हैं, और कल आप नौकरी के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से या किसी भी असाइनमेंट के पर्पस से दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं। मुझे याद है मैंने एक स्टूडेंट को किर्लोस्कर में प्लेस किया और किर्लोस्कर के ने उसको उठा करके चेन्नई में प्लेस किया। बच्चा जो है गुजरात का था, अब चेन्नई में वो भोजन बनाना जानता नहीं था और वहां के भोजन के साथ अपने आप को कस्टम नहीं कर सकता था। अंत में नौकरी छोड़ करके
वो एक उससे छोटी कंपनी में आकर के उसने अहमदाबाद में ज्वाइन किया। अगर उसको भोजन के साथ एकस्टम्ड होता तो आगे बहुत ग्रो कर सकता था। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जिनको भोजन बनाना आता है अथवा तो हर तरह के भोजन के साथ अपने आप को कंफर्टेबल कर पाते हैं, तो दे लिव बेटर लाइफ। दूसरी जो समस्या हमारी लाइफ में आती है वो है नए नए लोगों के साथ हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, कैसे सेट करें। हॉस्टल हमको सिखाता है, आपका एक रूममेट, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में बात करूं तो 64 नेशनल्स पढ़ते हैं और भारत के लगभग हर कोने से विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में यू नेवर नो कि आपका रूममेट जो है तमिलनाडु से होगा, तेलंगाना से होगा, कि वो आसाम से होगा, कि उड़ीसा से होगा, कि मणिपुर से होगा, कि कश्मीर से होगा। आपका दूसरा रूममेट देश के किसी और कोने से, आप तीनों साथ में रह रहे हैं। अब सोचिए भाषा, आपकी भाषा इंप्रूव होती है, आपका जो है एक माइंडसेट, एक नेशनल माइंडसेट के तौर पे डेवलप होता है, आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटी आपको समझ में आती है। आप सुबह उठे, पता चला आपका फेवरेट शर्ट कोई पहन करके चला गया है और आपको वही शर्ट पहन करके आज कॉलेज जाना था। उस समय क्षमा वृत्ति आपके अंदर आती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका पहन लेता हूं। तो वो एक जो पॉजिटिवनेस है वो डाइल्यूट होता है। तीसरी जो चीज हमारे अंदर इंप्रूव होती है जब हम हॉस्टल में रहते हैं, एंड दैट इज कि घर पे जब रहते हैं तो लगभग पूरे परिवार का सोना उठना एक समय में होता है। हॉस्टल में जब आपको सोना है तब तक आपके रूममेट की एग्जाम खत्म हो गई है, अब उसको एंजॉय करना, गाने सुनने। तीसरा जो रूममेट है उसकी एग्जाम अभी 1 महीने के बाद है और वो जो है बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, आपकी एग्जाम चल रही है। कुल मिला जुला करके आप एडवर्स सिचुएशन में, ऑड सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे लेकर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़े, सीखने को मिलता है। हॉस्टल एक सही मायने में जीवन जीने का गुरुकुल है और मैं पर्सनली ऐसा विश्वास करता हूं, मानता हूं, प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 4 से 5 साल हॉस्टल में रहना चाहिए। वो आपको एक कंप्लीट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाता है। राम अगर अयोध्या छोड़ करके जंगल ना जाते तो शायद वो राजा राम बनते, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनने में हमारे सामने ये नाम ना होता। अगर भगवान कृष्ण मथुरा ही रह गए होते और द्वारका तक ना जाते तो शायद हम उनको भगवान के तौर पर न जान पाते। दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं वो लोग ट्रैवल के, साधु चलता भला, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जो व्यक्ति अपनी जगह छोड़ता है, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य 9 साल की उम्र में भारत भ्रमण के लिए निकल गए और 31 की एज तक भारत का 3 बार पैदल भ्रमण कर डाला। सो आप जब बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। प्राची मैम मेरी बात से एग्री करेंगी। आज जो है सबसे बड़ी समस्या जो हम जब बच्चों को जॉब दिलाते हैं तब फेस करते हैं, बच्चों को बाहर ट्रैवल नहीं करना, उनको फोबिया है कि मैं मुंबई चला जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, पुणे जाऊंगा, बैंगलोर जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा अथवा तो जयपुर जाऊंगा, तो वहां पे मैं कैसे सेट होऊंगा। हॉस्टल में रहे हुए बंदे को कभी कोई टेंशन नहीं, तो उल्टे वो खुश होता है कि नई जगह पे जाने को मौका मिल रहा है, मैं जाकर के वहां पे नए ढंग से सेट होऊंगा। दुनिया के किसी भी कोने में जाने का मौका मिले, हॉस्टल में रहा हुआ व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के अपने आप को सेट कर सकता है। मैं तो जोधपुर के लोगों से बात कर रहा हूँ, राजस्थान के लोगों का दुनिया के लगभग हर एक कोने में अपना झंडा बुलंद है, इसी नाते क्योंकि लोग अपनी जमीन से निकल करके ट्रैवल करना उन्होंने पसंद किया। मैं हमेशा इस चीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्षधर हूं कि व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से निकल करके बाहर चल जाना चाहिए और आगे का हायर एजुकेशन लेना चाहिए। 20-25 साल दुनिया का भ्रमण करना चाहिए ताकि वहां से अच्छी अच्छी चीजें सीख करके लाके वापस अपने मातृभूमि में उसको हम इंट्रोड्यूस करें और अपनी मातृभूमि को और ज्यादा मजबूत करें। और इसीलिए हॉस्टल लाइफ को मैं जीवन का एक लर्निंग लाइफ मानता हूं। और मेरे पास तो 10,000 से लेकर 12,000 जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं मेरे यूनिवर्सिटी में। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी लोग आना चाहें आए और आप एक नेशनल एक्सपोजर लें। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके जीवन के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यस सर, आई गेस जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि अब वो आपके कुछ वर्ड्स पे हॉस्टल लाइफ का भी मजा ले सके और वो सीख सके जो पर्सनल डेवलपमेंट में उनके लिए फ्यूचर में बहुत हेल्प करे। So, sir, lastly, coming to part, your valuable suggestions for our viewers planning their future and your last piece of advice, sir. सबसे पहले देयर इज नो एडवाइस फ्रॉम माय एंड, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। उसमें से यदि आपको एडवाइस लगती है तो आप उसको ले सकते हैं। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कॉलेज कंप्लीट करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए कुछ भी करते हैं, अथवा आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भारतवर्ष में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं।
पहली अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, दैट इज कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट तभी आपको अच्छा मिल सकता है जब आपने अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर लिया है, आपने प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट आपने इंडस्ट्रीज में किया है, आपने इंटर्नशिप उन इंडस्ट्रीज में किया है जो आपके कोर्स से बिल्कुल समानांतर हैं। आपका एक लाइव एक्सपीरियंस रहा है उन इंडस्ट्रीज से जिन इंडस्ट्रीज में कल की तारीख में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। जहां तक मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो मेरी यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हर तरह के इंडस्ट्रीज से तो एक एक्सपोजर मिलना आवश्यक है यदि आप कैंपस प्लेसमेंट अच्छा चाहते हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्दर एजुकेशन। आप बीटेक कर रहे हैं, आप आगे एमबीए करना चाहते हैं, आप एमटेक करना चाहते हैं, आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। आप एमबीए करना चाहते हैं, आपको कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट देना पड़ेगा। आप आगे एमटेक करना चाहते हैं, आपको गेट देना पड़ेगा। फार्मेसी के बाद आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको जीपैट देना पड़ेगा। आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एफकैट अथवा सीडीएस देना पड़ेगा, अथवा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत जाना होगा, एसएससी देना होगा, एसएसबी देना होगा। बहुत सारी एग्जामिनेशंस हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन एग्जामिनेशन के माध्यम से आप चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे आप आगे के एजुकेशन हो, इन एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर इकोसिस्टम होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए जो इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अध्यापक होने चाहिए जो आपको तैयारी करा सकें, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको गाइड कर सकें। मेरा ऐसा मानना है कि दूसरा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो विद्यार्थियों को माइंडसेट में रख करके आगे बढ़ना चाहिए फ्यूचरिस्टिक करियर को लेकर के। तीसरा जो करियर विकल्प है, आज भारतवर्ष इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ा है। अभी 26 तारीख को ही हम लोगों ने इनोवेशन डे मनाया है भारतवर्ष में। एक अपॉर्चुनिटी हमारे से 16 तारीख को हमने मनाया, तो 16 तारीख को हमने मनाया है। तो इनोवेशन की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर हमको आगे जाना है तो उसके लिए हमारे पास पहले से गाइडेंस होना चाहिए कि मैं फाइनेंस कैसे मैनेज करूंगा, मैं किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करूं, उस बिजनेस मॉडल को किस तरह से मैं स्किल्स के साथ कनेक्ट करके आगे उसको ले करके जा सकूं, उसके लिए रिसोर्सेस में कैसे कनेक्ट करूं, भारत सरकार उसमें कैसे मुझे सपोर्ट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट मुझे कैसे सपोर्ट कर सकती है, उसको स्केल अप करके मुझे कल की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है तो मैं कैसे ले जा सकता हूं। ये सारी चीजें जानना आवश्यक है। आप डिफेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं, पीएसयूज में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग पैटर्न्स हैं जिनके माध्यम से अपने करियर को आप आगे ले जा सकते हैं। आप रिसर्च डोमेन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना एक तरीका है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें पहले से व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो उसके लिए डैड एग्जामिनेशन, DAAD, पर डैड की प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल अलग है, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। आप जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड अथवा तो इजराइल जाना चाहते हैं तो उसकी अपने पैटर्न्स अलग हैं। आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस जाना चाहते हैं तो उनकी एग्जामिनेशंस अलग हैं, उनकी एंट्री स्कीम्स अलग हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो विद्यार्थी पूरे का पूरा एक एल्गोरिदम बना करके एक विधिवत प्लानिंग के तहत जाता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना अठन्नी खर्चा किए हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खर्चा करने के बाद भी कहीं नहीं पहुंच पाते। सो वेल प्लानिंग के साथ यदि आगे बढ़ते, भारतवर्ष में 150 से ज्यादा, हर्षिल जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 150 से ज्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर के PhD तक आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, खूब सारी स्कीम्स हैं। और राजस्थान के लोगों के लिए तो स्कीम ही स्कीम है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो राजस्थान से निकले हैं और उन्होंने स्कॉलरशिप की स्कीम इंट्रोड्यूस कर रखी है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि इंफॉर्मेशन के अभाव के नाते, प्लानिंग के अभाव के नाते, स्ट्रेटेजी के अभाव के नाते, क्लैरिटी के अभाव के नाते हम लोग इन सारी अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास होना सब कुछ चाहिए था, लेकिन कुछ न हो करके हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं। मैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैं ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आपको किसी भी मुकाम पे, किसी भी मोड़ पर आपको कोई भी प्रश्न है, चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित है, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने से संबंधित है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, प्लेसमेंट से रिलेटेड है, डिफेंस में करियर बनाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी हो, कुछ भी करना है, आप हमारे ऑफिसर्स को मिले। हमारे भेरू सिंह जी जो है वहीं जोधपुर में हमारी ऑफिस है, मैं चाहता हूं आप उनसे मिलें। आपको जितने प्रश्न आप उनसे पूछें, मेरा नाम यहाँ पे लिखा है डॉक्टर पवन द्विवेदी। आप किसी भी सोशल मीडिया पेज पर आएंगे, नारद मुनि की तरह मैं वहां पे हर जगह पे विद्यमान हूँ। आप बिल्कुल आकर के क्लिक करें, बिल्कुल मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बेहतर करियर निर्माण हो पारुल यूनिवर्सिटी डिफेंस में, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे प्लेसमेंट हो, हर फील्ड के लिए हमने अलग अलग सेल बनाया है।
मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम है कि विद्यार्थी जहां जाना चाहता हो उस रास्ते पे उसको दौड़ा करके वहां तक पहुंचाए, ये हमारा काम है। और इसीलिए हम विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं। आप अपने डेवलपमेंट को पूरा प्लान करके आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामना है, शुभेच्छा है, आकांक्षा है और प्रभु से प्रार्थना है। Thank you, sir, for sharing your personal experience and your help advice. Dr. Prachiko, what advice would you offer to our viewers? Thank you so much, first of all, Harshil, for hosting such a wonderful session, and also to Parul University and Dr. Dwivedi for sharing his beautiful insights among all our students and school principals. As I can see, number of messages, chats, which I'm receiving onto my both the mobile phones and the chats onto my system. So all my students are actually loving it like anything. So thank you so much from the bottom of my heart, and remarkable education to Parul University first of all. And आज का जो सेशन, क्योंकि शायद आई बिलीव इट इज इन इंग्लिश एंड इतने अच्छे खूबसूरत एग्जाम्पल्स के साथ में सर ने बच्चों के साथ में शेयर किया, तो एवरीवन कुड बी एबल टू कनेक्ट. So for that, thank you so much, Dr. Dwivedi, once again. One thing which I would like to share among all our students, they know me very well. We keep on meeting again and again. हम सबसे रोज आए दिन मिलते रहते हैं, either by live or virtually or personally even. So stay focused, stay structured, plan, do not panic. The world is very small. So you need not to worry, but if you are structured, if you are planned, if you are organized, so definitely you will reach to your level. And today's as advice, as I always give one in my each session, yes, be organized. आप सुबह जब उठते हैं सबसे पहला काम, अगर अपना बेड भी अपने आप बनाएंगे तो पूरा दिन आपका ऑर्गेनाइज बीतेगा. So one thing which you need to adapt is to be organized from the moment you leave your bed. So today's thing is to be organized. With this, again, I'll be meeting you with you all once again in one of the next session and with another expert from different university. And meanwhile, if you wish to meet any one individual, or in meanwhile, if you wish to see any particular field expert, you all can drop me onto this chat box or onto our IVR number or messages or anything. You are feel free to connect with us anytime. But आप हमें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बता सकते हैं कि yes ma'am, we are looking for this particular field and we would like to know about this particular things, and we will be coming up with next definitely very good expert among you all to help you with that particular field and area. Thank you so much. Over to you, Harshit. Thank you so much, ma'am and sir. Time felt like a pleasant breeze today. We are grateful to you for taking out such time for us. Thanks to both of you for sharing your views and opinions and viewpoints. I'm sure that it is value add to both our viewers, parents, and students also. I also thank our viewers for joining us today on Zoom, Facebook, and other social media platforms, for posting their queries and for their love and support. We'll see you soon. Till then, take care, stay healthy. Goodbye. Thank you, sir. Thank you. Pranam to all of you.